Hello guys, welcome back to my channel. In today's video we are going to discuss about culpable homicide and murder. So culpable homicide culpable homicide is defined in section 299 of IPC. So the essential ingredients of culpable homicide are there must be a death of a person. The death should have been caused by the act of another person, and the act causes death should have done with first the intention of causing death. Second, the intention of causing such bodily injury is likely to cause death. Third, with the knowledge that such act is likely to cause death. So these section 299 is divided into three clauses. These are intention, second is bodily injury likely to, first talk about intention causing death. Second is the bodily injury. We know with the intention that if we hit some person here, then the injury might be result of death. There is probability of death. In the third with we have a knowledge that our act is likely to cause death. There are three explanation given in section 99. These are फर्स्ट, अगर किसी पर्सन को बॉडीली इंजरी है पहले से और जो एक्यूज्ड है उसके एक्ट के कारण उसके डेथ में और एक्सेलरेशन हो जाती है, तो ये मैटर नहीं होगा कि उसे पहले से कोई डिजीज़ या इंजरी थी. ये मैटर होगा कि उस फैटल ब्लो से उसकी डेथ हुई, तो उसका कारण होगा और ये कल्पेबल होमिसाइड के अंदर कवर होगा. सेकेंड एक्सप्लेनेशन ये कहती है ऐसे केस में जहाँ पे बॉडीली इंजरी की वजह से कोई पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे भी ये एक कल्पेबल होमिसाइड होगा. ये मायने नहीं रखता कि वो पर्सन का अगर इलाज होता तो वो बच सकता था, अगर उसे प्रॉपर मेडिकल रेमेडी मिलती तो वो बच सकता था. ये यहाँ पे नहीं हो सकता है. तो एक्सप्लेनेशन टू ये बताती है. एक्सप्लेनेशन थ्री ये डिफाइन करती है कि द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर वोम्ब इज़ नॉट होमिसाइड. वोम्ब के अंदर मदर वोम्ब में होमिसाइड वो एक होमिसाइड नहीं है. इट इज़ नॉट होमिसाइड. सो अगर कोई बच्चा वूम्ब से बाहर आ जाए, थोड़ा सा भी उसका कोई सा भी पार्ट बाहर आ जाए, तो वो डेथ ऑफ चाइल्ड कहा जाएगा और वो एक होमिसाइड के अंदर कवर होगा. सो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड नॉलेज. इंटेंशन नॉलेज. सो बासदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू में ये डिफाइन किया गया. द कोर्ट डिफरेंशिएटेड बिटवीन मोटिव, इंटेंशन एंड नॉलेज. So, motive is something, the court said that motive is something which prompts a man to form an intention. Knowledge is an awareness of consequence of the act. In many cases, intention and knowledge merge into each other and mean the same thing. More or less, an intention can be presumed from knowledge. The demarcating line between knowledge and intention is no doubt thin, but it is not difficult to perceive that they are connote different things. So यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉलेज और इंटेंशन these two are different thing, and that's why these are given a significant importance, and that's why the law commission has put two words separately, knowledge and intention. For example, for example, to distinguish between knowledge and intention, such as when an act is done by a person, it is presumed that must have been aware that certain specified harmful consequences or could follow. But that knowledge is a bare awareness and not the same as intention that such consequence should ensue. Intention compared with knowledge requires something more than mere foresight of consequences, namely the purposeful doing of a thing to achieve a particular end. So we can say knowledge is foresight plus purposeful doing of thing to achieve a particular end. So knowledge is foresight plus purposeful doing to achieve a particular thing. So अब हम लोग देखते culpable homicide of a person other than intended. So section 301 of IPC states that if a person other than intended was killed, then the liability will be same as if it was done by a person intended. So मान लीजिए एक पर्सन है A, एक पर्सन है B. ए प्लान करता है बी को मारने के लिए. इंटेंशन इसका होता है बी, ए का इंटेंशन होता है कि वो बी को किल कर सके. लेकिन
बी को मारने के चक्कर में सी की डेथ हो जाती है, तो अब यहाँ पे जो ए के लिए लाइबिलिटी होगी वो सेम होगी जो जैसे अगर वो बी को मार दिया होता तो सेम लाइबिलिटी होती, तो वही सी के साथ भी होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मर्डर, so murder is culpable homicide is genus and murder is its species. So every murder is a culpable homicide, but every culpable homicide is not a murder. So we from this statement we know that culpable homicide is something broader. Culpable is broader and murder is narrower. So every culpable homicide is a murder if it is under the clause 1 to 4 of section 300. तो section 300 में क्या है? Culpable homicide is murder if it is done with intention of causing death or intention to cause bodily injury knowing that the injury is likely to cause death. Third, intention of causing such bodily injury sufficient in ordinary course of nature to cause death, or knowledge that the act is imminently dangerous, that in all probability it will cause death or bodily injury which is likely to cause death, done without any justification for incurring the risk of causing death or the injury. So ये मर्डर कब होगा? जब इंटेंशन को एक पर्सन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ वो इंटेंशन फॉर्म पूरा बना के करे। सेकंड, वो जानते हुए इंटेंशन प्लस नॉलेज, यहाँ पे दोनों साथ में है। तो अब इसमें ये मर्डर में सर्टेनिटी होती है, प्रॉपर प्लानिंग एक तरह से बोल सकते हैं। मर्डर रिक्वायर्ड प्लानिंग। So murder required planning. Third, intention of causing such bodily injury sufficient in ordinary course of nature to cause death. So इतनी बॉडी इंजरी जो कि जान लेने के लिए काफ़ी हो। आखिरी है जो नॉलेज दैट द एक्ट इज़ इमिनेंटली डेंजरस दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट विल कॉज डेथ। सो यहाँ पे मर्डर एक फुल्ली श्योरिटी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है, और कल्पेबल होमिसाइड में एक आदमी मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता है, वो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी लेस होती है। लेकिन मर्डर क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है तो हम कह सकते हैं कि मर्डर प्रॉपर श्योर है कि यहाँ पे पर्सन का डेथ होगा ही होगा। कल्पेबल होमिसाइड में पर्सन एक बच भी सकता है क्योंकि वहाँ पे चांसेस है कि लाइकली टू कॉज डेथ, बट यहाँ पे श्योरिटी है क्योंकि इंटेंशन प्लस नॉलेज है। नॉलेज हमने देखा था नॉलेज हमने उस केस में देखा था वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू में कि नॉलेज जो होता है कि पर्पसफुल डूइंग ऑफ द थिंग टू अचीव अ पार्टिकुलर एंड। तो जब हम लोग नॉलेज और इंटेंशन साथ में होता है तो वो बहुत ही डेंजरस होता है, नॉलेज प्लस। सो मर्डर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। So culpable homicide is not murder when committed on grave and sudden provocation, provided that provocation was voluntarily sought or deliberately caused by accused, a result of an act done by public servant or in obedience of law, given by any act done in private defense. So इन तीन केस में grave and sudden provocation मतलब अगर कोई इंसान मतलब एक सडन हीट ऑफ द मोमेंट में रिस्पॉन्ड करे तो वो मर्डर नहीं कहलाएगी। सो सेकेंड है कमिटेड इन एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हमने पढ़ा था प्राइवेट डिफेंस जनरल एक्सेप्शंस में कि प्राइवेट डिफेंस में एक पर्सन लाइबल नहीं होता है कि जब अगर वो गुड फेथ में कर रहा हो और विदाउट द प्री मेडिटेशन, और उसके साथ उसे अननेसेसरी हार्म नहीं कॉज करना है जितना रिक्वायर्ड है उससे। थर्ड है कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट और ए पर्सन एडिंग पब्लिक सर्वेंट। सो पब्लिक सर्वेंट इससे भी बार्ड है। पब्लिक सर्वेंट हमने जनरल एक्सेप्शन में भी पढ़ा था कि पब्लिक सर्वेंट बहुत सारे चीज़ से एक्सक्यूजेबल हैं क्योंकि वो अपना ड्यूटी एक फॉलो करते हैं और उन ड्यूटी में शायद उन्हें ऐसा ज़रूरत भी पड़ सकता है कुछ सडन स्टेप उठाने का। तो और ये एक पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी वो कभी कभी ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिसके कारण वो कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है लेकिन वो मर्डर नहीं होगा। फोर्थ है कि कमिटेड विदाउट प्री मेडिटेशन इन सडन फाइट और हीट ऑफ पैशन विदाउट टेकिंग एनी अनड्यू एडवांटेज और एक्टिंग इन क्रूअल और अनयूजुअल मैनर कॉज टू ए पर्सन above 18 years of age without his consent. सो फर्स्ट कमिटेड विदाउट प्री मेडिटेशन, जैसा कि अगर मर्डर है तो उसमें प्री मेडिटेशन चाहिए तभी वो मर्डर है। इन सडन फाइट और हीट ऑफ पैशन, अगर हीट ऑफ पैशन में किया गया और विदाउट टेकिंग अनड्यू एडवांटेज
तो वो मर्डर नहीं कहलाएगा। फिफ्थ है कि कॉज टू ए पर्सन एबव 18 ईयर्स ऑफ एज विदाउट हिज कंसेंट। अगर कोई एक पर्सन है वो प्रोवोक करता है, ये माइनर चाइल्ड है जो कि 18 ईयर से नीचे है, इसको प्रोवोक करता है एक दूसरा पर्सन की सुसाइड करने को, तो यहाँ पे जो है ये पर्सन एबेटमेंट के लिए चार्ज होगा। लेकिन ये पर्सन जो है एबेटमेंट के लिए चार्ज होगा, जो एबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए चार्ज होगा, क्योंकि जो माइनर चाइल्ड है वो अपना कंसेंट खुद नहीं ले सकता। तो अब हम लोग एक केस लॉ देखेंगे। सो चेकिंग फॉर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। सो द केस लॉ नेम इज़ KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो इस केस के फैक्ट्स ये हैं। तो KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में के ये फैक्ट्स है कि जो एक्यूज्ड होता है वो एक नेवल ऑफिसर होता है। सो he was married and with 3 children. One day his wife confessed that he has some affair with the deceased person. So engaged at this, the accused went to SIP. जो accused होता है वो अपने SIP पे जाता है, वहाँ से वो अपना ऑटोमेटिक रिवॉल्वर उठाता है और वहाँ से went to the flat of the deceased person और उसको entered into his bedroom and shot dead. It was the accused surrendered himself. सो सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्वेश्चन होता है कि ये जो एक्ट है एक्यूज्ड का, ये एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 300 के अंदर आ सकता है। एक्सेप्शन 1 ऑफ 300 जो कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बारे में कहती है। सो अब हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा था कि द टेस्ट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज whether reasonable man belonging to the same class of society as the accused placed in the same situation in which the accused was placed would be so provoked as to lose his self control. So ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कोई एक रीजनेबल मैन भी वही करे जो एक्यूज ने किया है, तो उसे हम लोग ग्रेव एंड सडन कर सकते हैं। सो इन इंडिया वर्ड्स एंड जेस्चर्स में also under certain circumstances creates grave and sudden provocation. Third, the mental background created by the previous act of victim may be taken into consideration in ascertaining whether the subsequent act was grave and sudden provocation for committing the offense. So इससे हम लोग एक पर्सन है उसके नेचर को देखेंगे, क्या उसके बैकग्राउंड में कि वो तुरंत छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, और मतलब ये सब हम लोग देखेंगे कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है, कि वो मतलब जल्दी गुस्सा नहीं करता है। तो वो सब चेक करके पता लगा सकते हैं कि एक पर्सन ग्रेव एंड उसका एक्ट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में हुआ है या नहीं हुआ है। तो आखिरी है, द फैटल ब्लो शुड बी क्लियरली ट्रेस टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन अराइजिंग फ्रॉम दैट प्रोवोकेशन एंड नॉट आफ्टर द पैशन हैज कूल्ड डाउन बाय लैप्स ऑफ टाइम और अदरवाइज गिविंग द रूम एंड स्कोप ऑफ प्री मेडिटेशन एंड कैलकुलेशन। सो ये जो है बिल्कुल ही सडन होना चाहिए। लैप्स ऑफ टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता है इंसान का गुस्सा ठंडा होते जाता है, तो उसी तरह उसे ये नहीं सडन वो नहीं होता है प्रोवोकेशन, तो ये अब वो अपना कूल माइंड पे अच्छे से सोच सकता है। ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इसलिए हटाया गया क्योंकि इस माना जाता है कि एक पर्सन इन द हीट ऑफ मोमेंट वो ये अपना एक्ट पे उसका कंट्रोल नहीं रहता है। अगर उसे कुछ बहुत ही शॉकिंग सुनाई दे, जो कि इस केस में हुआ था, लेकिन जो हस्बैंड था वो उसने 3 घंटे, उसके पास 3 घंटे थे, 3 घंटे वो सोचने गया, वो अपने हाफ ऑटोगन अपने शिप से लाया और उसे जो पर्सन है उसे शूट किया। तो यहाँ पे उसके पास 3 घंटे थे सोचने के लिए, फिर भी उसने मर्डर करने का सोचा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाइंग दिस पोस्टुलेट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि द एक्यूज्ड वाज लायबल फॉर मर्डर अंडर 302. So thank you guys for watching this video. I will discuss punishment of culpable homicide and murder in the next video. Thank you.